السلام علیکم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عثمان میرا نام سعید ہے۔ ڈاکٹر عثمان سعید ہے۔ میں آج آپ کو میں آج آپ کو ڈائبٹیز ڈائبٹیز کے بارے یا میں بتاؤں شوگر گا کے اور بارے میں بتاؤں ڈائبٹیز گا آنکھ کو کہ متاثر شوگر کرتی ہے، آنکھ کو خاص متاثر طور کرتی پہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ ڈائبٹیز جو ہے وہ آنکھ کے پچھلے حصے کو یعنی آنکھ کے پردے کو متاثر کرتی ہے۔ آنکھ کے پچھلے پردے میں خون کی نالیاں ہوتی ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ آنکھ کا جو پردہ ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آنکھ کی جو نرو ہے جو اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ آنکھ میں موتیا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھ کے اندر جو ایک بھینگا پن پیدا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی آنکھ کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ آنکھ کے اندر بیسیکلی ایک آپٹک نرو ہوتی ہے جو نروز کو سیدھا دماغ تک لے کے جاتی ہے، اور آنکھ کے اندر جو پردہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں یعنی کہ خون کی نالیاں ہوتی ہیں، اور آنکھ کے پیچھے جو پردہ ہوتا ہے وہ بہت ہی سینسٹیو یعنی کہ نازک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آنکھ کے پردے میں اگر کوئی نقصان ہو تو بینائی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ شوگر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں میں ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جو شوگر زیادہ ہوتی جاتی ہے آنکھ کے پردے میں نقصان زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں تقریباً 30 سے 35% لوگوں میں ڈائبٹیز اور ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی لوگوں کو ہوتی ہے، خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں میں۔ جو شوگر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ آنکھ کو نقصان ہوتا جاتا ہے۔ اس میں دو باتیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اگر شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو یعنی کہ کنٹرول سے بالکل باہر تو ہو سکتا ہے 2 3 یا 4 سال میں آنکھ کا پردہ اتنا متاثر ہو کہ بینائی متاثر ہونی شروع ہو جائے۔ دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ مناسب حد تک کنٹرول تو ہوتی ہے، لیکن 20 یا 25 یا 30 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ جتنا نقصان ہوتا ہے وہ وہ کیومولیٹو نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ نقصان اکٹھا ہوتا جاتا ہے، اور وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک سلائیڈ ہے جس میں جو ڈائبٹیز سے اندھے ہونے والے لوگ ہیں وہ تقریباً چوتھے یا پانچویں نمبر پہ آتے ہیں، یعنی جتنی دنیا میں بینائی خراب ہوتی ہے، لوگوں کی نظر چلی جاتی ہے، وہ چوتھے پانچویں نمبر پہ شوگر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ان میں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس عمر میں ہوتے ہیں جو 40 45 50 سال کی عمر تک کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں آہستہ آہستہ شوگر کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی جانی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں رسک فیکٹرز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ شوگر ہے کتنی عرصے سے، دوسری کنٹرول کیسا ہے آپ کا، پھر اگر آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے تو وہ ڈائبٹیز کے نقصان کو اور زیادہ کرے گی۔ اگر آپ کے گردے خراب ہیں تو وہ بھی ڈائبٹیز کی وجہ سے جو آنکھ کے پردے کا نقصان ہے وہ زیادہ خراب کرے گی۔ اگر کسی خاتون کو پریگننسی ہے یا اور اس کو شوگر بھی ہے تو وہ بھی ماں کی آنکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا، ہائپر کولیسٹرول، اسموکنگ اور انیمیا یعنی خون کا نہ بننا، یہ بھی رسک فیکٹرز ہیں ڈائبٹیز کو آنکھ کے پردے کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگوں کو تو ڈائبٹیز کی کوئی سمٹمز ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن جو ڈائبٹیز اور ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی انکریز ہوتی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ ویژن جو ہے وہ دھندلی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آتے ہیں جو فلوٹ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی جو بینائی ہے کسی دن اچھی ہوتی ہے، کسی دن بری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو کچھ سیدھا نظر نہیں آتا، تھوڑی سی چیزیں ٹیڑھی نظر آتی ہیں، رات کے وقت صحیح اچھا نظر نہیں آتا، جو کلر رہتا ہے وہ کلر نظر نہیں آتا، اور ایڈوانس سٹیجز میں ایک دم کبھی بلیڈ ہوتی ہے اور ایک دم جو ہے آنکھ کی بینائی بالکل چلی جاتی ہے۔
यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इस साइड पे जो राइट साइड ऑफ द आई है, ये इस साइड पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये वो आंख है जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा डायबिटीज या शुगर की वजह से। और इस साइड पे जहाँ पे अब मेरा पॉइंटर है, इसमें बहुत सारी ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, बहुत सारे ये येलो कलर के लीकिंग स्पॉट्स हैं जो कि डायबिटीज की शुगर की वजह से आंख के पर्दे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये देखते जाइए कि शुरू शुरू में बिल्कुल डायबिटीज जब शुरू होती है और कुछ अरसे के बाद डायबिटीज का नुकसान शुरू होता है, तो बिल्कुल छोटी छोटी डॉट हेमरेजेस इस तरह की नजर आनी शुरू होती है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और बिल्कुल हल्का हल्का सा नुकसान है। इस सिचुएशन में बंदे की आंख को नुकसान भी नहीं होता और बंदे की बिनाई भी मुतासर नहीं होती। लेकिन जो जो ज्यादा होता जाता है कि आंख के पर्दे में ज्यादा खून नजर आना शुरू हो जाता है, जिस तरह के इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें आंख के कई बहुत सारे हिस्सों में खून आ गया है और यहाँ पे लीकिंग स्पॉट्स हैं या एक्सुडेट्स हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है और इस स्टेज के ऊपर इंसान को सोचना चाहिए कि शुगर जो है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। और आप ये देखेंगे कि जूं जूं नुकसान ज़्यादा होता जाता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। इसमें ब्लीडिंग स्पॉट्स भी हैं, यहाँ पे भी ब्लीडिंग स्पॉट्स हैं, और बहुत सारे लोगों को इस सिचुएशन में भी एहसास नहीं होता कि उनकी आंख का पर्दे में काफ़ी नुकसान हो चुका। फिर आखिर में एक स्टेज आती है जिसके प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, ब्लड जिसमें आंख के पर्दे में गलत किस्म की और एबनॉर्मल किस्म की ब्लड वेसल्स या खून की नालियां जन्म लेती हैं। इन ये जो खून की नालियां हैं जो यहाँ पे मैं जिनके ऊपर दिखा रहा हूँ, ये जो हैं, ये एकदम इनमें से ब्लीडिंग होती है और आंख के पर्दे में बिनाई बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसे विट्रियस हेमरेज कहते हैं। तो ये इस स्टेज पे आके लेज़र की ज़रूरत पड़ती है, और इस स्टेज से बचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। आजकल हमारे पास बहुत सारी इमेजिंग पिक्चर्स हैं, बहुत सारे कैमरे हैं जिसकी वजह से हम आंख के पर्दे की तस्वीर लेते हैं। और पहले तो तस्वीरें जो थी वो एक छोटे से एरिया में ली जा सकती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत सारा एरिया जो है ऑफ द रेटिना, जो रेटिना के जो आंख का पर्दा है उसके हम बहुत सारे हिस्से की तस्वीर ले सकते हैं। कभी कभी हम आंख के पर्दे में जो नुकसान होता है वो उसको एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं फ्लोरोसिन एंजियोग्राम। अब फ्लोरोसिन एंजियोग्राम में एक डाई जो है वो खून की नाली में हम इंजेक्ट करते हैं, और एक स्पेशल कैमरे के साथ या एक स्पेशल स्कैनर के साथ हम आंख के पर्दे की तस्वीरें लेते हैं, और तकरीबन 20 से 25 मिनट आंख के पर्दे की तस्वीरें लेते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि खून की नालियों में जो जो आंख के पर्दे में जा रही हैं उनमें इनमें कितना डैमेज है, खून आंख के पर्दे में कितना पहुंच रहा है, कितना नहीं पहुंच रहा, कोई लीकेज हो रही है या नहीं हो रही, और उसके अलावा और कितना नुकसान हो रहा है आंख के पर्दे को। तो बहुत सारे लोगों में जब एक हद से ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो हम नुकसान को मज़ीद बढ़ने से बचाने के लिए हम आंख के अंदर लेज़र सजेस्ट करते हैं कि लोगों को हम कहते हैं कि जी आप लेज़र करवा लें, ताकि जो आंख के अंदर जो डैमेज हो रहा है या नुकसान हो रहा है उससे बचा जाए और उसको कम से कम रखा जाए। तो उसके अलावा हम बहुत सारे टेस्ट और भी करवा सकते हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड भी है। अ, और बहुत सारे केसेस में हम अल्ट्रासाउंड उस वक्त करवाते हैं जब आंख के पर्दे में हैवी ब्लीडिंग हो जाए या आंख के पर्दे में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, और वो आंख
की जेली में यानी आँख के पर्दे के सामने आ जाए, ताकि ये सूरत हाल जब आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सा खून आँख के पर्दे से के आगे वाले हिस्से में आ गया है, जिसे हम विट्रियस हेमरेज कहते हैं। ये ये पिक्चर है जिसमें आप देखते हैं कि आँख में कोई हेमरेज नहीं है, और इस पिक्चर में आप देखते हैं जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, इसमें बहुत सारी विट्रियस हेमरेज है, यानी आँख के पर्दे में आँख की जेली में, आँख के अंदरूनी खाने में बहुत सारा खून जम गया है। अ, कई कई दफ़ा हमें ये भी पता लगता है कि आँख के पर्दे के नीचे भी खून जम जाता है, और ये इस अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रहा है। अ, कुछ कुछ और किस्म के स्कैन होते हैं जिन्हें हम ओसीटी स्कैन कहते हैं, और उन ओसीटी स्कैन्स में ये होता है कि हम देखते हैं कि आँख के पर्दे के पीछे जो एक सेंसिटिव हिस्सा है, जो बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा है, उसमें लीकेज है या नहीं है। और वो ओसीटी स्कैन से, जिस तरह के ये स्कैन आपको दिखा रहे हैं, उससे हमें पता लगता है कि उसमें आँख के पर्दे में लीकेज है या नहीं, और बहुत सारे लोग इसको कहते हैं आँख के पर्दे में पानी पड़ना। तो वो हम देखते हैं कि वो उसमें है या नहीं। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि आँख के पर्दे के बिल्कुल बिल्कुल साथ ही बहुत सारे एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, और यहाँ पे खून ज़्यादा बहना शुरू हो गया यहाँ पे, और अल्टीमेटली अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाएगा लेज़र के साथ या सर्जरी के साथ, तो आँख ज़ाया होने का या बीनाई ज़ाया होने का बड़ा हाई चांस होता है। और ये आप देख रहे हैं कि जिस तरह के इस हिस्से, आँख के इस हिस्से में ब्लीडिंग हो चुकी है, और खून जो है वो इतना जम चुका है कि हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हालात है। ये ऊपर वाले हिस्से में तो नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे वाले हिस्से में हमें आँख का जो पर्दा है वो सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, और अगर हमें नज़र नहीं आ रहा तो आपको भी, जो मरीज़ को भी नज़र नहीं आएगा। और आ, बहुत सी एडवांस स्टेजेस में हमें ये भी नज़र आता है कि आँख के पीछे जो है वो आँख का पर्दा जो है वो उखड़ जाता है, या आँख के पर्दे में स्कारिंग हो जाती है, या स्कार टिश्यू बन जाता है। और बहुत सारी हालात में ये आँख के पीछे आप देख रहे हैं कि ये एक ज़ख्म बन गया है, और ये ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में ये आँख के पर्दे के ऊपर एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स के साथ साथ आँख की पुतली में भी एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बन जाते हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है जिसमें बिनाई तो जाती ही है, लेकिन इसके अलावा आँख का प्रेशर भी बढ़ जाता है, और इसके अलावा अ, अ, आँख का प्रेशर बढ़ने के अलावा आँख में दर्द भी होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोगों में जब हम लेज़र करते हैं तो आँख का लेज़र इस तरह होता है कि इस तरह के स्पॉट्स नज़र आते हैं, और जो क्या कहते हैं, आँख बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो नहीं होती, लेकिन आँख के पर्दे के ऊपर जो डैमेज होता है वो कम से कम होता है, और मज़ीद इंसान को 5 8 10 साल मुनासिब बीनाई उनकी बरकरार रहती है। अब ये और पिक्चर्स हैं जिनमें मरीज को हेमरेजेस भी हैं, ब्लीडिंग स्पॉट्स भी हैं, और लीकेज स्पॉट्स भी हैं, आपको देख रहे हैं। और ये इस तरह के मरीज हैं जिनकी बीमारी को मुतासर होते हुए एक स्टेज पे पहुंच गए, उनके साथ ये लेज़र हुई और उनकी बीनाई बच गई। उम्मीद है आपको शुगर के बारे में बहुत सारी मालूमात मिल गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, और आप शुगर का भी ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।